Hello everyone, this is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, I am again here with the same chapter number 9 of Geography, Life in the Temperate Grassland. As you know, I have uploaded two videos earlier in which we have discussed about the prairies, which is also a temperate grassland of North America. Students, as you know, the grassland having different names in the different region like pampas, campos, llanos, downs, etc. This I have told you earlier. We have discussed about the prairies, where it found, why the name is given prairies, why it is known as sea of grass, and we have seen the location of prairies grassland. After that, we have discussed about hot wind that blows in winter season in this area, that is Chinook, and we have discussed about the climate also. After that, in the next video, we have discussed about flora and fauna, and we have learned who is known as cowboys and how bisons are extinct, came into the category of extinct due to the indiscriminate hunting. And we have discussed a lot about the peoples and some countries of American prairies and Canadian prairies also. Now have a look to the wells. As students, the grassland, the temperate grassland which is found in the North America is known as prairies. In the same way, the temperate grasslands of South Africa are called veld, as you have seen here. Right? Here's a very interesting part. Do you know? Section. The veld name was given by the Dutch settler before South Africa was colonized by the British. जो ये वेल नेम है ये डच सेटलर्स के द्वारा दिया हुआ नेम है बिफोर अफ्रीका वॉज साउथ अफ्रीका वॉज कोलोनाइज बाय द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले। ये कॉलोनी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जिस भी कंट्री में कभी भी ब्रिटिश का शासन रहा होता है उसको हम ब्रिटिश कॉलोनी बोलते हैं। तो जो डच सेटलर्स थे, जब ये साउथ अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था उस समय पर, डच सेटलर्स ने इस ग्रासलैंड को वेल्ड नेम दिया था। राइट, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द वेल्ड, आई वांट टू शो यू द मैप ऑफ Africa. This is a map of Africa, students. Here you can see a highland area. This is from where is Tropic of Capricorn is going to pass. This area, this highland which is in dark green color, you can see that is a veld area, veld grassland is found here. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर ये है, यू कैन सी हियर, ये एक माउंटेन रेंज है हमारी ड्रैकेंसबर्ग, और यहाँ पर टू सिटीज़ हैं जोहान्सबर्ग एंड किम्बरले, जो कि बहुत पॉपुलर हैं. वाई दे आर पॉपुलर आई विल टेल यू लेटर ऑन इन दिस वीडियो. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग about any more thing, I will discuss about the veld temperate grasslands. Okay, velds are rolling plateaus with varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter. It is bound by the Drakensberg mountain on the east. To its west lies the Kalahari desert is there. On the northern eastern part, high velds are located that attain a height of more than 1600 meter in the same place, in the some places. Look at the map of Africa and name the countries that are covered by the veld area. The tributaries of rivers
Orange and Limpopo drain the regions. Okay. सो स्टूडेंट्स, जो ये दक्षिण अफ्रीका में जो शीत उष्ण यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी कि नॉट टू हॉट नॉट टू कूल, यानी इस घास स्थल को हम वेल्ड के नेम से जानते हैं। और वेल्स आर रोलिंग प्लेटिव्स। ये कैसे होते हैं? थोड़े से उर्मिल पठार टाइप के होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रोलिंग प्लेटिव्स होते हैं विद वेरिंग हाइट्स। इनकी डिफरेंट रेंजिंग हाइट्स होती है, एटलीस्ट हम 600 मीटर से 1100 मीटर। इट इज़ बाउंड बाय द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, कोई भी मैप ड्रॉ होता है ऐसे, तो हमारा अबव में क्या होता है? ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे साउथ, हियर ईस्ट, एंड दिस वन इज वेस्ट। ओके, दिस यू नो वेल। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इट मीन्स इधर जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। इस पार्ट में हाई वेल्स हैं, आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर। इनकी हाइट कितनी हो जाती है? लगभग 1600 मीटर के आसपास। इन सम प्लेसेस, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, नेम द कंट्रीज दैट कवर्ड बाय द वेल्स। हमें अब क्या बताना है? कुछ ऐसी कंट्रीज भी बतानी है जो कि वेल्ड एरिया में हैं। तो वेन एवर विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीज, तो ये कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका, यहाँ पर दैट कवर्ड बाय द वेल्स। साउथ अफ्रीका, सेकेंड वन बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, लेसोथो। ये कंट्रीज़ हैं जो कि इस वेल्ड एरिया में पाई जाती हैं। वेल्ड ग्रासलैंड है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। एंड स्टूडेंट्स, ये जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, इससे घिरा हुआ है, और वेस्ट में यानी कि पश्चिम डायरेक्शन जो उसकी है, उसके पास कौन सा है? डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन एंड कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। और इनके जो नॉर्थ ईस्ट है एरिया है, वो कौन सा एरिया है? हाई, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज हाई वेल्ड, ठीक है। और यहाँ जो आई शो इन द मैप कि ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर्स हैं, ये जो हैं एक अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस एरिया को ड्रेन करती हैं, मतलब इस एरिया को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर। So now you can see here that ये हमारा ईस्ट में है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। यहाँ पर हमने देखा ये ऑरेंज रिवर है, दिस इज़ लिम्पोपो रिवर जिसने कवर कर रखा है इसको, और ये है हमारा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। Now students, there is a one activity. Some type of grass grows on almost every surface of the earth. List names of places where you have observed grass growing. Example, lawns, cricket field, between cracks of a sidewalk, etc. मीन्स आपने बहुत जगहों पर घास उगी हुई देखी होगी ना किसी तरह की घास उगी हुई देखी होगी। ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं हमारी पूरी अर्थ पर, जहाँ पर भी आपने देखी है घास उगी हुई ना, उस एरिया का नाम आप चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। उन एरियाज़ के नेम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जहाँ पर आपने घास उगी हुई देखी है। मे बी ये जो एरिया हो सकता है वो कैसा एरिया भी हो सकता है, जो कि आपका लॉन है, आपका क्रिकेट ग्राउंड भी हो सकता है, और आपका जिस भी एरिया से आप गुज़रते हैं उसका उस वे में भी आपको ये इस टाइप का एरिया दिख सकता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट्स of the whale. Here it is given the whale. Let's do, there is an activity students. It is very interesting. Whales lie in the southern hemisphere. When it is summers in Wales,
What season would it be in the prairies? Yes. ये जैसे कि हमने सदर्न वेल्ड ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर स्टूडेंट्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मीन्स हमारी 3 इम्पॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं तीनों ही गुजरती हैं हमारी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से. ओके तो जो ये हमारा साउथ अफ्रीका है ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. तो जब समर्स हैं वर्ल्ड में तो प्रेरीज में क्या होगा, मीन्स जब समर्स में सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटोमेटिकली विंटर होगा और ये टाइम पीरियड रहेगा मिड अक्टूबर टू मिड फरवरी. गॉट इट. The world have a mild climate due to the influence of Indian Ocean. Winters are cold and dry. Temperatures vary between 5 degrees Celsius and 10 degrees Celsius and July is the coldest month. Summers are short and warm. Johannesburg records about 20 degrees Celsius temperature in the summer. स्टूडेंट्स एक्चुअली इंडियन ओशियन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो वेल्ड ग्रासलैंड का एरिया है वो कैसा मिल्ड क्लाइमेट रखता है. ये मिल्ड क्लाइमेट मतलब जो जलवायु है वो कैसी रहती है, थोड़ी मॉइस्चर रहता है, उसमें नमी रहती है, मिल्ड क्लाइमेट रहता है. और जो हमारी विंटर सीज़न है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, ड्राई एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी और ड्राई रहती है, शुष्क रहती है, सूखी रहती है. इसी दौरान क्या है, अगर हमने देखते हैं कि कितना कौन सा ऐसा सीज़न है जो सबसे कोल्डेस्ट रहता है, तो इट वाज जुलाई. जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. ठीक है, इट इज़ जुलाई मंथ. एंड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया एट इज़ 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस. समर्स क्या रहते हैं, बहुत शॉर्ट रहते हैं और कैसे रहते हैं, वार्म भी रहते हैं. और जो समर है वो बहुत शॉर्ट भी रहता है और जोहान्सबर्ग जो एक एरिया है उसका टेम्परेचर एटलीस्ट 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. ठीक है, विल सी लेटर. 20 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है समर्स में जोहान्सबर्ग में. ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु है जोहान्सबर्ग में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है. आगे देखिए. The world receive rainfall mainly in the summer month. From November to February, this is mainly because of the warm ocean currents that wash the shores of the wells. If the rainfall is scanty in the winter months from June till August, drought may occur. तो स्टूडेंट ये जो वेल्ड एरिया हो जाते हैं यानी कि जो वेल्ड ग्रासलैंड एरिया है ये रिसीव करता है रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ. गर्मियों में ही बारिश होती है वेल्ड में. और ये एरिया कब से कब तक रहता है, ये मंथ कब बारिश होती रहती है इस एरिया में, फ्रॉम नवंबर टू फरवरी. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म करंट. ये क्यों होता है, वार्म ओशन करंट की वजह से, गर्म महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनकी वजह से, उनके इफेक्ट की वजह से होता है. और ये अगर इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी, अगर कम बारिश होती है विंटर्स में, तो जो जून से अगस्त तक का टाइम पीरियड है, जून टिल अगस्त, ड्रॉट में अगर, तो इस एरिया में सूखा भी पड़ सकता है. ठीक है. So this is all about the climate and wild areas. If there isn't a doubt, you can join doubt sessions. Hopefully it will be able to you will be able to understand the things. Thank you so much, students. Keep learning, stay connected, stay tuned. We'll catch you later in the next video. Thank you.